of the kidnap victims. جناب اسپیکر, جو پاکستان میں دہشت گردی کا مسئلہ ہے, یہ کوئی نیا مسئلہ تو نہیں ہے, اور پاکستان میں جو دہشت گردی کا ایولیوشن ہوا ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا اور ایک ایکسٹینشن سے میرا اپنا ذات کا ایک تعلق ہے. شور بلوچستان کی اپنا کانٹیکسٹ ہے, پختونخوا کا اپنا کانٹیکسٹ ہے, دوسرے صوبوں کا اپنا کانٹیکسٹ ہے, بٹ چاہے وہ مذہبی دہشت گردی ہو, چاہے وہ اس قسم کی سو کالڈ سیپریٹسٹ نیشنلسٹ دہشت گردی ہو, یا کوئی اور جو پولیٹیکل وائلنس کا طریقہ کار ہو, اس کا پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف مخالفت کرتے آ رہے ہیں, مگر اس دہشت گردی کی وجہ سے ہم نے بہت نقصان اٹھایا ہے, اور obviously اس ملک نے بہت نقصان اٹھایا ہے. جناب اسپیکر, ایک ذاتی حیثیت سے جب سے میں بچہ تھا میں یہ دہشت گردی دیکھتا آ رہا ہوں. میں وزیر اعظم کا بیٹا تھا, 1 سال کا ہوگا, 1 سال سے تھوڑا زیادہ. ان زمانوں میں مجھے وزیر اعظم کے گھر سے اغوا کرنے کی کوشش کی گئی, اور وہ ناکام واقعہ کے بعد شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے مجھے لندن میں رکھا تھا ایک پروٹیکشن کے لیے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی اپنی زندگی میں بہت سے اساسینیشن کے کوششیں کی گئی. کوئی مذہبی دہشت گرد تھے, کوئی لسانی دہشت گرد تھے, کوئی آخرکار شہید محترمہ بینظیر بھٹو خود دہشت گردی کی وجہ سے شہید ہوئی, اور جو اس شہادت کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کا لہر بھرتا رہا, چاروں صوبوں میں یہ آگ پھیلا. ایک دن ایسا نہیں گزرا جس میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہوا, اور ان دنوں میں بھی جناب اسپیکر کافی مایوسی تھا, کافی پریشانی تھا کہ آخر ہم کب اور کیسے نہ صرف اس دہشت گردی کا مقابلہ کر سکیں گے, مگر ان کو شکست دلوا کے پاکستان کو ترقی کا راستہ پہ لے کے جا سکیں گے. مگر پاکستانی قوم نے جو ناممکن تھا وہ ممکن کر دیا. جو پوری دنیا کا اتحاد افغانستان میں نہیں کر سکا, پاکستان کے عوام, پاکستان کی شہری, پاکستان کے پولیس, پاکستان کا افواج, پاکستان کے ہر ایک شہری نے اس جنگ میں اپنا حصہ ڈال کے
پاکستان کو ان دہشت گردوں سے پاک کر دیا تھا. ہمارا سیاسی قیادت سے لے کے عام شہری تک، ہماری فوجی آفیسر سے لے کے ہمارے پولیس افسران تک، ایسے کوئی طبقہ نہیں ہے جناب اسپیکر جس نے اس جنگ میں قربانی نہ دی ہو. اور یہی وجہ ہے کہ یہ ہم سب کا کامیابی ہے کہ یہ ہاؤس متحد ہوا اکراس پولیٹیکل لائنز. تب بھی پاکستان تحریک انصاف کا اپنا سیاست تھا، دوسری جماعتوں کا اپنا سیاست تھا، پولرائزیشن عروج پہ تھا، ان کا دھرنا کا سیاست چل رہا تھا. مگر ان دنوں میں بھی جب ایک ایسے ثانیہ، ایک ایسے واقعہ ہوا جیسے اے پی ایس کا واقعہ تھا، تو ہم نے اپنا سیاست کو ایک طرف رکھ کے قومی مفاد کو ترجیح دی، نیشنل ایکشن پلان کو انڈورس کیا، چاروں صوبوں میں ان سے مقابلہ کیا، اور پاکستان سے اس نیٹ ورک کو ہم کہتے تھے اور فخر سے کہتے تھے کہ ہم نے دہشت گردوں کی بیک بون توڑ دی ہے. وہ نہ ریکروٹ کر سکتے تھے، نہ پاکستان میں ان پہ وہ کیپیسٹی رہا تھا کہ وہ دہشت گردی کے واقعہ کر سکتے تھے. اور افسوس کے ساتھ جناب اسپیکر، وہ جو تمام کامیابیاں تھے ہمارے، اب ہم کھو بیٹھے ہیں، اور وہی دہشت گردی کا آگ پھر سے جل رہا ہے. مگر جناب اسپیکر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم ماضی سے زیادہ خطرناک دور سے گزر رہے ہیں. اس وقت جناب اسپیکر وہ یونٹی، وہ پولیٹیکل کنسنسس جو اس وقت ہم کامیاب تھے اپنانے میں، اس وقت ہم وہ کنسنسس آپس میں نہیں بنا سکیں. ہمارا اپنے کمزوریاں وجہ جو بھی ہو، ان کمزوریاں کا فائدہ یہ دہشت گرد اٹھا رہے ہیں. ہمارا لیک آف یونٹی کا فائدہ پاکستان کے دشمن، پاکستان کے عوام کے دشمن اور بین الاقوامی طاقتوں اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. پاکستان کے عوام، پاکستان کے مظلوم عوام کو نشانے پہ لے کر پختونخوا سے لے کے بلوچستان تک وہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک دہشت گردی کے واقعے کرتے آ رہے ہیں. اور ہر دہشت گردی کا واقعہ جناب اسپیکر پچھلے دہشت گردی کا واقعہ سے زیادہ obnoxious ہے، زیادہ خطرناک ہے اور زیادہ نقصان ہوتا ہے. اور جناب اسپیکر، جو پچھلے ایک دو دن جو واقعہ چل رہا تھا، اس میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں ان کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا. یہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں ان کا کوئی سیاست نہیں ہوتا. اور جو مذہبی دہشت گرد ہوتے ہیں اصل میں ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. یہ تمام تنظیمیں جو بھی وہ اپنے آپ کو نام دے دے، ان کا مقصد ہے قتل کرنے کا اور بے گناہ لوگوں کو قتل کرنے کا، دہشت پلانے کا اور ان کا مقصد حاصل کرنے کا. نہ وہ
मजहबी दहशतगर्द इस्लामी रियासत चाहता है, ना ये सो कॉल्ड बलोच दहशतगर्द आजादी अपने हकूक चाहते हैं। जनाब स्पीकर, वो खून खराबा करते हैं, वो पाकिस्तान की अवाम की तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं, और जो बैनुल अक़वामी कूद तो उनके पीछे खड़े हैं, उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट और बाकी लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, उनका जो एम्स है वो हासिल करना चाहते हैं। सबको नजर आ रहा है कि जनाब स्पीकर, ये दहशतगर्द पाकिस्तान के आम शहरी को कत्ल करके चीन को क्यों ललकारते हैं? जनाब स्पीकर, मैं आपसे पूछता हूं कि उस ट्रेन में जो भी बेगुनाह शहीद हुए, उनका क्या ताल्लुक है इस रीजन का, जियोपॉलिटिक्स का? उनका क्या ताल्लुक है कि पाकिस्तान में क्या निजाम चल रहा है? ये बेगुनाह लोग थे जिनको इन दहशतगर्द ने शहीद किए हैं, और अब उनके लाशों पे अपना जो बैनुल अक़वामी एजेंडा है वो हासिल करना चाहते हैं। मगर दहशतगर्द को तनकीद करना, उनका मज़म्मत करता, उनका बुरा भला कहना जनाब स्पीकर तो बहुत आसान है। ये तो मैं भी करूंगा, ये तो हुकूमत भी करेगा, ये तो ऑपोजिशन भी करेगा। सवाल जो हमें करना है कि इन दहशतगर्दों को मुकाबला करने के लिए हमसे क्या हो सकता है। बतौर सियासी जमात हमारा क्या किरदार हो सकता है कि हम एक किस्म का पॉलिटिकल कंसेंसस इस एक पॉइंट एजेंडा पे बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम तमाम जो बाकी एजेंडा आइटम्स है उस पे अपना सियासी बयानबाजी और सियासी मकसद हासिल करने के लिए या अपना पॉइंट स्कोर करने के लिए हम सियासत करते रहे, मगर इन दरिंदों को मुकाबला करने के लिए जो पाराचुनार से लेके बोलान तक पाकिस्तान के अवाम को कत्ल कर रहे हैं, शहीद कर रहे हैं, हमारे अवाम के खून के साथ होली खेल रहे हैं, हम कम से कम आज ये तय कर दें कि जो तमाम सियासी जमातें इस हॉल में मौजूद हैं, हम एक दूसरे के बारे में जो भी समझे, हम ये मानने कि ये हम सब का दुश्मन वो दहशतगर्द है जिन्होंने कल का वाकया, जो कल के वाकये में मुलव्वस थे और जो कोई दहशतगर्दी का वाकया में मुलव्वस होगा। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं कि हमारा डिफेंस मिनिस्टर ने वजीर आला बलोचिस्तान को अप्रिशिएट किया, और मैंने कल भी अपना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आला पख्तूनख्वा का तंकीद किया। हुकूमत का भी तंकीद होता है, लेकिन इस मसला पे चाहे वो चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान हो या चीफ मिनिस्टर पख्तूनख्वा हो, अगर वो हमसे कोई मदद चाहते हैं कि जो सूबाई जिम्मेदारियां हैं लॉ एंड ऑर्डर का मुकाबला करने के लिए, हम कैसे इनको मदद कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली चाहे वो हुकूमत हो या हुकूमत के इत्तेहादी हो, अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफर करना चाहिए। और अगर मेरा वजीर आला में या मेरा सूबाई हुकूमत में कोई कमी पेशी थी या है, आप हमें बताएं, आप हमारे हाथ में अपना हाथ थामें ताकि हम मिलकर इनको मुकाबला कर सकते हैं।
वजीर आजम नवाज शरीफ था जब हमने पहली बार नेशनल एक्शन प्लान बनाया। कोई वजह नहीं है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 नहीं बना सकता है। हम मानते हैं कि इसका सिर्फ किनेटिक कंपोनेंट नहीं है। जब पीपल्स पार्टी के दौर में हमने दहशतगर्दी का मुकाबला किया तो हमने उस वक्त डायलॉग, डिटरेंस और डेवलपमेंट का पॉलिसी दिलवाया। चाहे वो बलूचिस्तान का मसाइल हो या पख्तूनख्वा में जो लेजिटिमेट कंसर्न्स वहां के अवाम के थे, साइल और वसाइल के, अपने हकूक पे, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी पे, वो हमने एनएफसी अवार्ड में 18वीं तरमीम की सूरत में पूरे किए। मगर जो लोग हमारा आईन को नहीं मानते, जो लोग इंसानियत को नहीं मानते, जिन्होंने हथियार उठा कर दहशतगर्दी पूरा मुल्क में फैलाया, उनको हमने साउथ वजीरिस्तान में मुकाबला किया, आपने नॉर्थ वजीरिस्तान में मुकाबला किया, हमने कराची में मुकाबला किया, इन्होंने बलोचिस्तान में मुकाबला किया, इन्होंने फाता में मुकाबला किया। हम पहले इनको शिकस्त दिलवा सकते तो हम एक बार फिर इनको शिकस्त दिलवा सकते हैं। जनाब स्पीकर, हम सब जानते हैं कि बलोचिस्तान के अवाम अपने हकूक मांग रहे हैं, वो अपना आईनी हिस्सा का मुतालबा कर रहे हैं अपने वसाइल के ऊपर, अपने सूबे के अपने मर्जी के मुताबिक चलाने के ऊपर अपना हिस्सा मांग रहे हैं रीको डीक से, अपना हिस्सा मांग रहे हैं। तमाम जो वफाकी इश्यूज है वो तो इश्यूज है, वो चलते आ रहे हैं, मगर उनका सबसे पहले मुतालबा ये है कि इनको जीने का हक दो, तहफ़्फ़ुज़ दिलवा दे, दहशतगर्दों से तहफ़्फ़ुज़ दिलवा दे। और हाँ, हमने भी दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशंस तो आपने करने हैं, मगर जो भी हमसे हो सकता है, जो भी इस मुल्क के इदारों से हो सकते हैं, कि जब आप दहशतगर्दों का मुकाबला करते हो, जब आप दहशतगर्दों को निशाने बना के हम ऑपरेशन करते हैं और पूरा कौम उनके साथ है जब ऑपरेशंस होते हैं, मगर उनका भी पूरा कोशिश ये होना चाहिए कि कोलैटरल डैमेज ना हो, जो दहशतगर्द ना हो उनको वो कोलैटरल डैमेज के नतीजे में उनको नुकसान ना हो, ताकि यही दहशतगर्दी की तंजीमें उनके साथ जो नुकसान हुआ उनके साथ सियासत करके अपना मकसद को आगे नहीं बढ़ा सके। जनाब स्पीकर, अगर हम ये कंसेंसस नहीं बनाएंगे, अगर हम आपस में एक इत्तेहाद इस एक इशू पर हासिल नहीं करेंगे, अगर हम मिल के ये तय नहीं करेंगे, सियासत चलता रहेगा, हमारी बारी, आपकी बारी, किसी और की बारी का सियासत चलता रहेगा। लेकिन अगर हम अभी इस इशू को नहीं पकड़ते हैं और मुकाबला करते हैं, तो मैं इस मुल्क का वजीर खारजा रहा हूं और मैं इस हाउस से पूरा यकीन के साथ कह सकता हूं जनाब स्पीकर, कि जो कुव्वतें पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं और इस रीजन को स्टेबलाइज करना चाहते हैं, वो यूनाइटेड है, वो अपने जो टारगेट है वो उसकी तरफ बढ़ते आ रहे हैं। जो हमारे अपने मिस्टेक्स हैं अफगानिस्तान में, और जिस आजादी के साथ वहां के मुख्तलिफ दहशतगर्द आपस में मिलके कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ये जो नुकसान, ये जो आग बलूचिस्तान में आज जल रहा है, वो पहले पाकिस्तान के चारों सूबों में, फिर इस रीजन में, फिर पूरा दुनिया में फैलेगा जनाब स्पीकर। और हमने देखा है कि क्या नुकसान उस सूरत में पाकिस्तान के अवाम को उठाना पड़ता है। मैं एक बार फिर इस हाउस की कॉन्डेमनेशन में हम साथ हैं, मगर मेरा अपील ये है कि अब हमारा रद्द अमल में भी हमें साथ होना चाहिए। और उम्मीद है कि तमाम सियासी जमातें अपना पूरा कोशिश करेंगे कि हम ये टारगेट हासिल कर सकते हैं। वैसे जनाब स्पीकर, मैंने सदर पाकिस्तान की तकरीर पे बात करना था, सबका रोज़ा भी है, और मैंने अभी बलूचिस्तान का जो पोर्शन है वो मुकम्मल कर दिया है। मैं
क्विकली सदर जरदारी की तकरीर में पे कंक्लूड करना चाहूँगा, फिर आपसे इजाज़त मांगूंगा। काश सदर जरदारी की तकरीर को भी उतना एहतराम और इज़्ज़त के साथ सुना जाता जितना पाकिस्तान के मेंबरान पार्लिमान ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का तकरीर सुना था। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो सदर जरदारी की तकरीर था वो आम सियासी तकरीर नहीं था, वो तारीखी तो इस लिहाज से भी था कि 8वीं दफ़ा सदर जरदारी इस हाउस से खिताब कर रहा था, मगर साथ साथ सदर जरदारी का तकरीर एक नफरत और तकसीम की तकरीर नहीं थी। सदर जरदारी का तकरीर इत्तेहाद और कंसेंसस की तकरीर थी, और उसी तकरीर में सदर जरदारी ने इस हाउस के मेंबरान जो कुछ उस वक्त एहतजाज कर रहे थे तो शायद नहीं सुन सके, ने अपील किया कि सियासत का मतलब है गिव एंड टेक, एंड द बेस्ट प्लेस फॉर गिव एंड टेक इज द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। सदर जरदारी ने फिर अपना तकरीर में मईशत को कवर किया, दहशतगर्दी को भी कवर किया, फॉरेन पॉलिसी को कवर किया, और जो पानी का बर्निंग इशू है उसका भी जिक्र किया। सदर जरदारी ने हुकूमत की मुआशी टीम का जो मुस्बत रिजल्ट्स है, खास तौर पे जो हुकूमत की पॉइंट है कि महंगाई में इजाफा नहीं हो रहा है, उसको सदर जरदारी ने वेलकम किया। मगर वो ऐसे कामयाबी है कि हम सबको वेलकम करना चाहिए, चाहे आप हुकूमत में हो या ऑपोजिशन में हो। पाकिस्तान की मीशत की तरक्की, पाकिस्तान की तरक्की हम सबका मुफाद में है और सबकी इंटरेस्ट में है कि शोर मचाने के बजाय उस एक पॉइंट पे आप ज़रूर हुकूमत की तारीफ करते और साथ साथ फिर जो भी आपका तजवीज़ होता कि हम कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं, जैसे सदर जरदारी ने। वैसे ही जो दहशतगर्दी का मसला है, ठीक एक दिन पहले सदर जरदारी इसी इशू पे यही इत्तेहाद के बात कर रहा है, और अफसोस के साथ जिनसे बात होना है सुनने के लिए तैयार नहीं। सदर जरदारी ने तो बैनुल अक़वामी इशूज पे भी बात किया। हमारा रीजनल पार्टनर्स, इंटरनेशनल पार्टनर्स, फिलिस्तीन से लेके कश्मीर तक का बात किया जनाब स्पीकर। कनाल्स पे जो बतौर वफाक का नुमाइंदा सदर जरदारी ने नया कनाल्स की मुखालफत किया और कंसेंसस पे जोर दिया, मगर जो भी पॉइंट था जनाब स्पीकर, और ये मुल्क और कौम देख रहा था कि एक तरफ सदर जरदारी कहे कि महंगाई में कमी हो रहा है, ये अच्छी बात है, अवाम को रिलीफ देना चाहिए, लोगों को रोजगार देना चाहिए, ऐसे बातें, और दूसरी तरफ कैदी नंबर 804 को रहा करो। सदर जरदारी कहे कि दहशतगर्दी का मुकाबला हमें करना है, मिल के मुकाबला करना है, कैदी नंबर 804 को रहा करो। सदर जरदारी कहे कि फिलिस्तीन के मजलूम अवाम और कश्मीर के मजलूम अवाम के साथ हम खड़े हैं, कैदी नंबर 804 को रहा करो। सदर जरदारी कहे कि हम नया क्लास का मुखालफत करते हैं, कोई नया पोजीशन नहीं है। 27 दिसंबर हम सब गरी खुतबख्श में थे, मैंने भी वाज़ेह किया, सदर जरदारी ने भी वाज़ेह किया, कोई नया तो पोजीशन भी नहीं है इस जमात की। जब इनके हुकूमत ने 2 कनाल्स की इजाजत की, हम ऑन रिकॉर्ड पे है, उनका मुखालफत करते आ रहे थे। हमारा एक पोजीशन है कि वफाक के इश्यूज पे कंसेंसस से बनाए, हम भी कंसेंसस बनाने के लिए तैयार है।